पंजाब जीके ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। In the Battle of Multan, British forces were led by dash against forces led by dash. ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਗਈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੋਰਸਿਸ, ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਆਰਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਬੰਗਾਲ ਆਰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਸੀਗਾ ਹਿਊ ਗੌਫ। ਪਰ ਬੈਟਲ ਆਫ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੌਣ ਜਰਨੈਲ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼, ਜਨਰਲ ਵਿਸ਼। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵੋਲਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਮੂਲ ਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਇੱਥੇ? ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੈਟਲ ਆਫ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਜ਼ ਲੈਡ ਬਾय ਜਨਰਲ ਵਿਸ਼। ਔਰ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਮੂਲ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੈਟਲ ਆਫ ਮੁਲਤਾਨ ਇਹ ਆਖਰੀ ਬੈਟਲ ਸੀਗੀ ਸੈਕੰਡ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੂਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਲਾਵਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੈਟਸ ਅਨਦਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ। ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। When was the State Reorganization Commission appointed by Government of India and who was appointed its chairman? State Reorganization Commission, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ABCD ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਨੇ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟੇਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਯੂਪੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ MP ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਬੰਬੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਔਰ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਕਦੋਂ ਅਪੁਆਇੰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਉੱਠੀ ਸੀਗੀ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਔਰ ਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਟੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਉੱਠੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇਲਗੂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਤੇਲਗੂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਲ ਮੁੱਲੂ ਨੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 1953 ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਨਣੀ ਪਈ ਸੀ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੇਸ ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਸਟਿਸ ਫਜ਼ਲ ਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ MC ਮਹਾਜਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਸਾਇਰਲ ਰੈਡਕਲਿਫ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੀਨੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? MC ਮਹਾਜਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ। ਵੈਸੇ MC ਮਹਾਜਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਬਣੇ, ਤੀਜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਬੇਸ ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। Didba Tehsil falls is situated on National Highway number dash and is in dash district. Didba important क्यों है? ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਦਿੜਬੇ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੜਬੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਚੁਏਟਡ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?
ਸੋ ਦਿੜਵਾ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ 52 ਨੰਬਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ NH 52 ਔਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਇਹ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 7 ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਔਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਡ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਈਸਟ ਟੂ ਵੈਸਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਈਵਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2 4 6 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ 52 ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੋਂ ਇਹ, ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 7 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ। ਸੋ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਦਿੜਬਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 19 ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 52 ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। Which range of mountains separate Jammu region from Kashmir Valley? ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੈਲੀ ਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਂਜਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਰੇਂਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ਼ਨ ਗੰਗਾ ਵੈਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬਿਆਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਬਿਆਸ ਕੋਟ ਤੱਕ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਰੇਂਜ ਇਹ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨੀਹਾਲ ਪਾਸ ਜਦੋਂ ਚ ਲੰਘ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੰਮੂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਰੇਂਜ ਹੈ ਇਹ ਰਾਵੀ ਤੇ ਚਨਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਦਰਿਆ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਰਾਵੀ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਸੱਜੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚਨਾਬ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਚਨਾਬ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਰੇਂਜ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਦਾਖ ਰੇਂਜ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਸਕਾਰ ਰੇਂਜ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਰੇਂਜ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਪੀਰ ਪੰਜਾਲ ਰੇਂਜ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਰੇਂਜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਉਹਨੂੰ 3 ਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਫਿਰ ਮਿਡਲ ਹਿਮਾਲਿਆ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਦਾਖ ਰੇਂਜ ਹੈ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰਾਕੋਰਮ ਰੇਂਜ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਫੇਅਰ ਐਟ ਜਗਰਾਉਂ is held in honor of dash Muslim ਪੀਰ and is held in the months of, ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਪੀਰ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਮੋਕਮਦੀਨ ਔਰ ਇਹ ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਫਾਗ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਇਹ ਸੁੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੀਵੇ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਮੋਕਮਦੀਨ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਫਾਗ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। Which of the following rivers borders ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ? ਕਿਹੜੇ ਦਰਿਆ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ। ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਰਾਵੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਧਰੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਿਆਸ ਤੇ ਰਾਵੀ। Which of the following statement is correct? Ram Raiyas is a group of dissenters are the followers of dash son of dash, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹੀਏ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ। ਸੋ ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਆਪਾਂ
ਸੁਣਦੇ ਸਾਖੀਆਂ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪੇ ਕੁਮਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੋ ਦੈਟਸ ਅਨਦਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਸਟੋਰੀ ਆਲਸੋ ਪਰ ਇਹ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸੋ he was son of Ram Raya the Guru and are followers of ਇਹ ਆ ਗਏ ਜੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗੇ ਸੋ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬਣਿਆ The main objective tripartite treaty signed by Maharaja Ranjit Singh, East India Company and Afghan King in 1838 was कि ट्राईपार्टाइट ट्रीटी हुई दैट मीनस कि तीन पक्षी ट्रीटी हुई 1838 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ ਟੂ ਡਿਮਾਰਕੇਟ ਦਾ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਦਾ ਰਸ਼ੀਅਨਸ ਫਰੋਮ ਐਨੈਕਸਿੰਗ ਪਰਸ਼ੀਆ ਆਮ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਟ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸੀਗੀ ਪਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੂ ਅਲਾਉ ਦਾ ਸੇਲ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਬਾਈ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਦਾ ਕਿੰਗ ਆਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕੋਹਿਨੂਰ ਦਾ ਹੀਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਔਰ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਸੰਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਏ ਦਿਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹ ਰਾਜਪਾਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਓਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਕਤ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਭੇਜਦੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਦਾ ਕਿੰਗ ਆਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਔਰ 1841 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕੰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉੱਥੋਂ he was not able to govern Afghanistan. Dash wear hand-woven white robes, bound their turbans in a distinctive way, and they use fire in the marriage rituals. So option के निरंकारी नामधारी अकाली ते नाना फबाव कि एक खास तरीके नाल अपनी पग बंधे ने चिट्टे कपड़े पाते ने और मैरिज सैरेमनी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਨਾਮਧਾਰੀਜ਼ ਸੋ ਨਾਮਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਗੋਲ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ
ठीक है जी। और चिट्टे कपड़े पाते हैं और जदों ये विआह शादियां करते हैं तो उस वेले ये गुरु ग्रंथ साहब के सामने जिहड़ा सीगा ਉਹ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਫੇਰੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਨੋਨ ਐਸ ਨਾਮਧਾਰੀਸ। The scribe of Kartarpuri Pothi is dash and it was prepared during the times of dash। Kartarpuri Pothi, so Kartarpuri Pothi ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ओरिजिनल ਕਾਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ अर्जन देव जी के टाइम के उत्ते जिहड़ा उन्होंने लिखवाया सीगा। वो पोथी ओरिजिनल जिहड़ी पोथी हैगी है उन्होंने वैसे तो आपां जिहड़ा सीगा पोथी साहब भी कहते हैं उन्होंने, ठीक है जी। और सो और क्योंकि वो इट इज़ नॉट कंप्लीट गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच जिहड़ा सीगा असीं देखदे हां कि गुरु गोबिंद सिंह साहब ने गुरु तेग बहादुर की बाणी वो भी विच ऐड करवाई सीगी। इस करके जिहड़ा सीगा ये करतारपुर की पोथी कही जाती है या आदि ग्रंथ कहा जाता है इनू या पोथी साहब भी कहा जाता है। सो ये करतारपुर दे विच पई होण करके जिहड़ा सीगा इनू करतारपुरी पोथी कहा जाता है। सो जिवें मैं तुहानूं दस्सिया कि यह बाबा स्क्राइब इज, ठीक है जी, स्क्राइब इज, ठीक है जी, भाई गुरदास जी, हाँ जी, भाई गुरदास जी और गुरु अर्जन देव जी के टाइम के उत्ते जिहड़ा सीगा इनू जिहड़ा सीगा ਇਹ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ दैट इज़ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਪੋਥੀ। ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਸੋਢੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੋਥੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਪੋਥੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੇਮ ਦ ਓਨਲੀ ਕਨਾਲ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਫਰਮ ਦ ਰਾਈਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਸਤਲੁਜ ਐਂਡ ਇਰੀਗੇਟਸ ਡੈਸ਼ ਰੀਜਨ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਹਿਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲਵੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। सिर्फ एक जी नहर हैगी है वो सज्जे पासे निकलती है और वह नाम की है और एक किहड़े इलाके नूं जिहड़ा सीगा ये सिंजदी है। सो दैट इज़ उन्होंने कहा जाता है जी कि बिस्त दुआब कहा जाता है और ये उहदे सज्जे पासे तो निकलती है। नेम द ओनली कैनाल बिस्त दुआब कैनाल और ये किहड़े इलाके नूं करदी है जी ये दुआबे नूं जिहड़ा कि अपना दुआब है इस वेले दा दुआब है उन्होंने सिंजदी है। सो ये दा साडा आंसर है, ठीक है जी। सो बिस्त दुआब नूं यह सिंजदी है, ठीक है जी, हाँ जी। सो इट इज़ इनू बिस्त दुआब कनाल भी कहा जाता है, इनू फिर बिस्त दुआब कनाल भी कहा जाता है। वैसे ये हालात कोई बहुत चंगे नहीं और ये भी कहा जाता है कि ऑलमोस्ट ये सुक गई है। ये वास्ते बहुत कोशिश की गई है पिछे जे कि इनू दोबारा ये पानी पूनी छड्डिया जाए और इसकी मुरम्मत की जाए, पर ये हालात ठीक नहीं। अकाल तख्त वॉज बिल्ट इन डैश, ठीक है जी, इट इज़ कंसिडर्ड एज ए सीट ऑफ बोथ, ठीक है जी। सो एक किहड़े साल दे विच बनिया सी अकाल तख्त और इट इज़ ए सीट ऑफ बोथ डैश पावर, ठीक है जी। सो जदों आपां गल करदे हां कि मीरी पीरी का मतलब की होया स्पिरिचुअल एंड टैंपोरल, राजसी ताकत भी और धार्मिक ताकत भी जिहड़ा सीगा 1609 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਜੀ ਇਹਦਾ? ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਪੁਸ਼ਪਾ ਗੁਜਰਾਲ ਸਿਟੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਅ ਡੈਸ਼ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਸਿਚੁਏਟਡ ਇਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹਦਾ? ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਕੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਿਟੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਲਾਰਜੈਸਟ ਸਿਟੀ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ कपूरथले दे विच है। भगत रविदास वॉज ए डिसाइपल ऑफ, भगत रविदास किहदे चेले सीगे? ऑन बिलोंग टू डैश ऑर्डर, ठीक है जी। सो एक कबीर जी दे चेले सीगे कि गुरु नानक देव जी दे चेले सीगे कि रामानंद सीगे कि चैतन्य महाप्रभु दे सीगे। ही वॉज ए डिसाइपल ऑफ रामानंद, ठीक है जी। और निर्गुण भगती ऑर्डर जिहड़ा सीगा दे बिलोंग करते हैं। निर्गुण किहनूं कहा जाता है? जिहड़े परमात्मा बिलीव करते हैं पर वो मूर्ति पूजा बिलीव नहीं करते। जिहड़े मूर्ति पूजा बिलीव करते उन्होंने सगुण कहा जाता है। जिहड़े कहते हैं कि परमात्मा चारे पासे जिहड़ा सीगा सब च जिहड़ा सीगा विराजदा उन्होंने निर्गुण कहा जाता है। सो इसदा जवाब की होया जी? सी ऑप्शन इसदा जवाब होया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है जी, नॉट करेक्ट है जी। इत्थे गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप सिचुएटेड फतेहगढ़ साहिब ये ठीक है, ठीक है जी, पर इसका मतलब कि यह नॉट करेक्ट
नहीं है ਤਾਂ है ना, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਬਣੇਗਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਰ ਮਾਰਟਰਡ ਐਟ ਦਿਸ ਪਲੇਸ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਟਰਡਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਬਣੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟ ਕਰੈਕਟ ਹੈ। ਦਿਸ ਪਲੇਸ ਆਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਬਾय ਸੇਠ ਟੋਡਰਮਲ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ 2 and 3 ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ, 2 and 3। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ 2 and 3, 2 and 3 ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਨੋਟ ਦਿਸ ਵਨ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਓ ਇੱਥੇ। ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਰਸਟ ਡੇ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਇਨ ਦੇਸੀ ਕੈਲੰਡਰ ਇਨ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਮਤ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਜਨਵਰੀ ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਨੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਰਸਟ ਡੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਚੇਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ, ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜੀਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ और उम्मीद है कि थानू ये समझ आए होंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए 68 मॉक के क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस रहे हैं, उनके आंसर्स क्या रहेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द यंगेस्ट ऑफ द रेवोल्यूशनरीज टू बी हैंग्ड बाय द ब्रिटिशर। सबसे कम उम्र दराज के व्यक्ति जिन्हें फांसी पर लटकाया गया, खुदीराम बोस, मुजफ्फरपुर केस के अंदर ये कन्विक्टेड थे। अमीर खुसरो गिव्स द फर्स्ट ग्राफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ जौहर ऑफ राजपूत वीमेन आफ्टर द विक्ट्री ऑफ अलाउद्दीन खिलजी ओवर विच राजपूत स्टेट, तो इट वाज इन रणथंबोर, ठीक है। द मंगोल्स अंडर चंगेज खान इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजीन ऑफ, तो इल्तुतमिश का शासन था उस समय भारत में जब चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट, द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग वाज सेट अप बाय, इट वाज सेट अप बाय रास बिहारी बोस। द फर्स्ट विमेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज फाउंडेड बाय, दैट इज ढोंडू केशव कार्वे, जिसे इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। ही वाज अ वेरी सोशल रिफॉर्मर। Who was the first European to translate Bhagavad Gita into English? So it was Charles Wilkin. उसके बाद आपको पार्ट्स मैचअप करने हैं। पार्ट 1 डील्स विद द यूनियन एंड टेरिटरी, पार्ट 2 डील करता है सिटीजनशिप, पार्ट 3 करता है फंडामेंटल राइट एंड पार्ट 9 डील करता है पंचायती राज के साथ। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट रूल प्रोमलगेटेड ऑन द एनी स्टेट इन इंडिया, तो 356। अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इशूड अंडर आर्टिकल 352 मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ के अंदर अप्रूव होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, तो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है हमारा। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया अबॉलिश अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म, तो आर्टिकल नंबर 17 है ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हैज द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया, तो आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को यह पावर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वॉज इंसर्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टिल द एज ऑफ 14, 6 to 14, तो ये आर्टिकल है 21A, ठीक है। 45 आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया था इसमें। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन वाज नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन, तो विलियम वुड नहीं थे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर इसमें थे, ठीक है। Receipts which leads to decrease in assets or increase in liabilities of the government under fall under capital receipts होती हैं क्लास ये। इनविजिबल एक्सपोर्ट्स हमारे कौन से होते हैं, सर्विसेज को इनविजिबल एक्सपोर्ट्स कहा जाता है। इन विच टाइप ऑफ टैक्स सिस्टम टैक्स लिवाइड डिक्रीजेज एज द इनकम गोज ऑन इंक्रीजिंग, तो इसको बोलते हैं रिग्रेसिव टैक्स, ठीक है। इनकम बढ़ी और टैक्स कम हो गया। डैश कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी एंड बैंक क्रेडिट, तो आरबीआई कंट्रोल करती है। वेयर डज इंडिया स्टैंड्स ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, तो फर्स्ट नंबर पे रैंक है हमारा। द इंडियन एयरफोर्स डिप्लॉयड फर्स्ट स्क्वाड्रन ऑफ 4 S-400 ट्रम्प एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इन पंजाब सेक्टर, व्हिच इज द इफेक्टिव रेंज, तो S-400 की 400 का मतलब ही है 400 किलोमीटर है क्लास। वन ऑफ द बिगेस्ट कल्चरल फेस्टिवल ऑफ इंडिया खजुराहो डांस फेस्टिवल, ये कहाँ पर होता है आपका, मध्य प्रदेश में होता है। विच कंट्री होस्टेड 2 days समिट फॉर द न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट जून 22-23, तो फ्रांस के अंदर ये हुआ था। फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन इन डिप्लोमेसी ऑब्जर्व्ड इन, तो ये 24 जून 2023 को सेलिब्रेट हुआ है।
Prime Minister Modi addressed the joint session of Parliament of USA on June 22. What was its formal name? तो US Congress कहा जाता है उसको. India's largest rail coach plant in the private sector established by Medha Service Drive Private Limited inaugurated on June 22 in which city? तो ये हैदराबाद के अंदर किया गया, Medha Servo Drives. So this is all we have from this week's mock test. अपना स्कोर टैली कीजिए और देखिए कितना स्कोर आपका बनता है. थैंक यू. हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हर हफ्ते आपके लिए एक नया मॉक टेस्ट लाया जाता है, तो मैं आशीष आज आपका फिर से यहाँ पे स्वागत करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक नंबर 68। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, अ चार्ट कैन बी पुट एज द पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन यूजिंग। आपके जब भी चार्ट को आप यूज करते हैं तो किस तरीके से चार्ट, कौन सी ऑप्शन से आप लोग यहाँ पे चार्ट को यूज करते हैं? इंसर्ट पिक्चर या फिर चार्ट, या फिर इंसर्ट चार्ट में, या फिर एडिट चार्ट में, या फिर व्यू चार्ट में। तो आपके पास इंसर्ट में जाना, पिक्चर में जाने की आपको जरूरत नहीं होती है, तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा आपके पास। आपके पास एडिट में तो एडिट होगा, व्यू में तो देखा जाएगा, तो इंसर्ट ही इसका आंसर आएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे। ठीक है, इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है चार्ट का, तो वहां पे चार्ट पे आप क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट अगर बात करता हूं, द अरेंजमेंट ऑफ एन एलिमेंट सच एज द टाइटल एंड सब टाइटल, टेक्स्ट, पिक्चर, टेबल्स एक्सेट्रा, इन सभी को क्या बोला जाता है? लेआउट, प्रेजेंटेशन, डिजाइन या फिर स्कीम। प्रेजेंटेशन तो नहीं बोला जाता, डिजाइन तो नहीं बोला जाता, ऑब्वियस है लेआउट या फिर स्कीम में ही बोला जाएगा, तो स्कीम भी नहीं होती है, इसका आंसर आएगा लेआउट। ये क्या होता है? लेआउट आपके पास यहाँ पे होता है। नेक्स्ट अगर बात करता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ साउंड फाइल, इनमें से कौन सी जो है साउंड फाइल है? तो WAV आपके पास क्या होती है? साउंड फाइल आपके पास होती है। तो उसका डायरेक्ट आंसर याद रखिएगा कि ये क्या होती है? साउंड फाइल आपके पास होती है, कई बार पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट अगर बात करता हूं, अगला क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू यूज टू एड टाइम्स द स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन। अब देखो नाम से ही अगर मैं बात करता हूं, साफ तौर पे स्लाइड्स वर्ड यहाँ पे यूज कर दिया गया है और साफ तौर पे प्रेजेंटेशन वर्ड यूज कर दिया गया है। तो आपके पास प्रेजेंटेशन वर्ड आ जाए, प्रेजेंटेशन का मैं बात करता हूँ, प्रेजेंटेशन का मतलब है MS आपके पास पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट में ही इसका आंसर जाएगा। तो ये टेबल है, एक्सेल है, वर्ड थी, तो कभी भी आंसर नहीं बनेंगे। आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन। आंसर क्या बनेगा? ए ऑप्शन आपके पास यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट अगर बात करता हूं, विच व्यू इन अ पावर पॉइंट कैन बी यूज टू एंटर स्पीकर कमेंट्स। ठीक है, आपके पास नॉर्मल, स्लाइड शो, स्लाइड शॉटर या फिर नोट्स पेज व्यू। तो इसका आंसर है नोट्स पेज व्यू। ये सबसे नीचे जाके आपके पास अगर व्यू में आप लोग जाते हैं तो वहां पे ऑप्शन मिलता है जहां पे इसे ऐड किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करता हूं, व्हाट इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ CMOS। CMOS क्या होता है? पहले तो CMOS एक सेल होता है जो कि 1 रुपए के सिक्के की तरह गोल सा होता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। और ये क्या काम करता है? आपके सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बनाए रखता है। जैसे कि आपने देखा होगा 15 दिन, 20 दिन या 1 महीना आप अपने कंप्यूटर को ऑन नहीं करते हैं, उसके बाद जब भी ऑन करते हैं तो उसमें टाइम एंड जो कैलेंडर है वो बिल्कुल सही चल रहा होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ CMOS सेल। तो ये क्या करता है? आपके सिस्टम में इलेक्ट्रिसिटी जब आपके पास नहीं होते हैं तो उसे कंटिन्यू रखता है। तो इसका आंसर बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। हाँ जी, कॉम्प्लीमेंट्री मीटर या फिर कॉम्प्लीमेंट्री ऑक्सीडेशन, गलत। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कंप्लीट, गलत। तो इसका आंसर बनेगा ए ऑप्शन, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। डन। नेक्स्ट अगर बात करता हूं, तो हु इज नोन एज द ह्यूमन कंप्यूटर ऑफ इंडिया। तो ह्यूमन कंप्यूटर जो है किसको बोला जाता है? सबसे पहले है चार्ल्स वेबेज, ये तो फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। एलन ट्यूरिंग तो आपके पास मॉडर्न फादर ऑफ कंप्यूटर हैं। निर्मला सीतारमन, तो ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता। तो एक ही आंसर बचा है, दैट इज शकुंतला देवी। ठीक है, तो आप लोग जरूरी नहीं कि क्वेश्चन आता हो, आप लोग इस तरीके से एलिमिनेशन भी कर सकते हैं, एलिमिनेट करके भी आपके पास आंसर यहाँ पे आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करता हूं, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। December 2, December 22, December 12, December 29। तो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन, December 2 आपके पास क्या होती है? कंप्यूटर लिटरेसी डे हम लोग मनाते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है अनदर नेम ऑफ लॉजिकल चिप, दूसरा नेम जो है लॉजिकल चिप का क्या है? पीरोम, मेमोरी या माइक्रो प्रोसेसर। पीरोम, मेमोरी या फिर माइक्रो प्रोसेसर, इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो होपफुली यहां तक आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हर हफ्ते आपके लिए एक नया मॉक टेस्ट लाया जाता है, तो मैं आशीष आपका फिर से स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे ये रहा। अब देखो डिफिकल्ट इज कोडेड एज दिस, तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो इसका कोड क्या है? ई। डिफिकल्ट का पहले कोड लिख लेते हैं। डिफिकल्ट का मीनिंग क्या है? DIFFICULT। इसका कोड क्या है? EJGGJTVMU। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो आपके पास 4 5 +1 9 10 +1 6 7 +1 6 7 +1 9 10 +1 3 4 21 22 12 13 और यहाँ पे 20 और 21। अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे सभी में एक बात समझ में आ गई कि +1 यहाँ पे लॉजिक जो है लग रहा है। अगर बात करता हूँ बेटा सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि आपके पास +1 हुआ तो L के बाद क्या आएगा? M, सभी में M है। अब देखो स्टार्टिंग से अभी तो कुछ नहीं कटा है, आखिरी से करते हैं। W के बाद क्या आता है? आपके पास W होता है 23 WXYZ, तो आपके पास X आएगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। ए ऑप्शन आंसर, क्योंकि मैंने कैंसिलेशन यहाँ पे कर लिया। क्यों? क्योंकि आपके पास W जो होता है 23 होता है, 24 पे आता है X, ठीक है, 25 पे आता है Y, 26 पे आता है Z। तो आपने डायरेक्ट ही काट लिया, इसमें कोई और चेक करने की जरूरत ही नहीं। जब आपके पास 3 ऑप्शन कटेंगे तो एक ही आंसर रहेगा, दैट इज ए ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास देखते हैं ADEHIL और डैश और QT। ठीक है, अगर बात करता हूं यहाँ पे चेक करते हैं क्या है। देखो 1 4 5 8 9 12 17 और आपके पास 20। चलो चेक करा जाए बेटा। यहाँ से अगर यहाँ तक गए हैं तो क्या हुआ है? +4 हुआ है। और यहाँ से अगर यहाँ तक गए हैं तो +4 हुआ है। और यहाँ से अगर यहाँ तक गए हैं तो +4 हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ 9 + 4 13 होता है, 13 में क्या होता है? M। और आपके पास यहाँ से यहाँ गए हैं तो +4, यहाँ से अगर यहाँ गए हैं +4 और यहाँ से अगर यहाँ जाएंगे तो +4। तो अब 12 + 4 16, 16 में क्या आता है आपके पास? P। तो MP आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में है, जो कि सी ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं तो अगले जो है छोटा सा पजल आपके पास यहाँ पे है, सिटिंग पजल भी आप इसे बोल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया है? 5 पर्सन आर स्टैंडिंग इन अ क्यू, वन ऑफ द 2 पर्सन एट द एक्सट्रीम एंड इज प्रोफेसर एंड द अदर इज बिजनेसमैन। सबसे पहले क्या बोल गया है? एक प्रोफेसर और एक बिजनेसमैन जो है एंड पे खड़े हैं। तो 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, बना के देख लो, प्रोफेसर और पहला बिजनेसमैन। दूसरा ये बनेगा कि बिजनेसमैन यहाँ ले लो, प्रोफेसर यहाँ ले लो। ठीक है ना। देखो सबसे बड़ी बात है कि आपके पास पॉसिबिलिटी बनेगी तो वो दोनों की दोनों हमने बना के देख ली। देन आगे आपके पास क्या है? एन एडवोकेट इज सिटिंग टू द राइट ऑफ द स्टूडेंट। एडवोकेट जो है इज स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ स्टूडेंट, मतलब अभी इसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि स्टूडेंट के राइट में कौन है? एडवोकेट है। ठीक है, देन आगे आपके पास क्या है? एन ऑथर इज टू द लेफ्ट ऑफ बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के लेफ्ट में ऑथर है, तो बिजनेसमैन के लेफ्ट में ऑथर। तो ये ऑप्शन तो अपने आप वैसे ही एलिमिनेट हो गया, इसकी तो जरूरत थी ही नहीं। आगे क्या है? द स्टूडेंट इज बिटवीन प्रोफेसर एंड एडवोकेट। स्टूडेंट जो है, जो आपके पास स्टूडेंट है वो किस किस के बीच में है? प्रोफेसर एंड एडवोकेट। तो प्रोफेसर और एडवोकेट के बीच में क्या है? स्टूडेंट है। तो अगर मैं बात करता हूं प्रोफेसर यहाँ पे आ जाएगा, प्रोफेसर और स्टूडेंट के बीच में एडवोकेट, तो यहाँ पे प्रोफेसर आ गया बेटा, यहाँ पे स्टूडेंट आ गया और यहाँ पे एडवोकेट।
लो बेटा, 5 बंदे थे, पांचों के पांचों आ गए आपके पास। प्रोफेसर, स्टूडेंट, एडवोकेट, ऑथर एंड बिजनेसमैन। ये आपके पास यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हमने देखी, जिसमें से एक में ये फॉर्म हो गया। सबसे पहले देखते हैं, काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट द ऑथर इज एट विच प्लेस। ऑथर की अगर हम बात करते हैं लेफ्ट साइड से, तो 1 2 3 4 ऑथर जो है वो कौन से प्लेस पे आपके पास यहाँ पे खड़ा है? 4th प्लेस पे यहाँ पे खड़ा है। तो आंसर इज डी ऑप्शन, आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ, अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिडल इन द क्वी। मिडल जो है सेंटर में कौन खड़ा है? तो मिडल जो था वो था एडवोकेट भाई साहब। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? एडवोकेट। लीजिए जी, एडवोकेट। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, इफ एडवोकेट एंड बिजनेसमैन एक्सचेंज देयर पोजीशन। चलो पहले एक्सचेंज कर लो, बिजनेसमैन एंड एडवोकेट। बिजनेसमैन एंड एडवोकेट, यहाँ देख लो, बिजनेसमैन यहाँ पे आ गया है और एडवोकेट यहाँ पे चला गया है, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। एंड आल्सो ऑथर एंड स्टूडेंट। ऑथर एंड स्टूडेंट मैं एक ही करके इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आप गलती ना करें। ऑथर और स्टूडेंट, अब ऑथर और स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे इस तरीके से। अब आगे पूछा क्या है वो भी एक बारी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। देन हु विल स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट के लेफ्ट में कौन खड़ा है? अगर मैं बात करता हूं तो स्टूडेंट अब यहाँ से उठ के यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ स्टूडेंट आ जाएगा, और यहाँ पे कौन आ चुका था? बिजनेसमैन। तो स्टूडेंट के लेफ्ट में कौन खड़ा है? फिर बिजनेसमैन यहाँ पे खड़ा है। तो आंसर क्या आएगा? बिजनेसमैन। कौन आएगा? बिजनेसमैन यहाँ पे खड़ा है। आंसर क्या आएगा? बिजनेसमैन आपके पास। डन। नेक्स्ट अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा पजल था वो खत्म हुआ। अगले में चेक करते हैं, इन अ क्वी शिखर इज 9th फ्रॉम द बैक। बैक होता है राइट साइड से, 9th फ्रॉम द बैक तो लास्ट साइड से या राइट साइड से, दोनों एक ही बात है। अरुण प्लेस 8th फ्रॉम द फ्रंट। लेफ्ट साइड से। निखिल इज स्टैंडिंग बिटवीन टू। निखिल इन दोनों के बीच में बैठा है। देन आगे क्या है? व्हाट वुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ बॉयज स्टैंडिंग इन द क्वी। अब आपसे पूछा गया कि कम से कम कितने बच्चे होंगे। तो बेटा कितने बच्चे होंगे, इसका फॉर्मूला होता है टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। देखो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, सबसे पहले आपके पास ये बोला गया है, तो अगर पहली बात आपके पास ऐसे निकालेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास निकलता नहीं है। मिनिमम बोला गया है तो मिनिमम में वैल्यू को क्या करना होता है? चेंज कर देंगे, तो आपके पास यहाँ पे आंसर जो है आ जाता है। अब जहाँ पे अरुण था वहाँ शिखर, आप लोग इसको बिठा देंगे शिखर को, तो कुछ इसकी अरेंजमेंट इस तरीके से आएगी। फिर तो यहाँ पे आएगा शिखर जो कि 9th फ्रॉम द राइट है, अभी भी 9th फ्रॉम द राइट ही रहेगा, और यहाँ पे है अरुण बेटा। अरुण जो है 8 फ्रॉम द लेफ्ट, अभी भी 8 फ्रॉम द लेफ्ट ही रहेगा, और नेक्स्ट है बीच में निखिल, तो निखिल इन दोनों के बीच में है। अब फिर से मैं इस फॉर्मूला का यूज करूंगा, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर मैं बात करता हूं टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस ऑफ 1, ध्यान से देखें आपके पास, अगर मैं बात करता हूं, हम अरुण को ले लेते हैं। अरुण की लेफ्ट साइड से पोजीशन कितनी है आपके पास? 8, और अरुण की ही पोजीशन राइट साइड से निकालेंगे तभी तो ये पॉसिबल हो पाएगा। तो अरुण अगर लेफ्ट साइड से 8 है और अगर शिखर जो है 9 है राइट साइड से, तो उससे पिछली वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 9 से 1 कम कर देंगे 8, और 8 से 1 कम कर देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 7 माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 14। इस बात का मतलब क्या था, इसको भी जरा समझ लो क्या हुआ है। इस बात का मतलब ये था बेटा कि आपके पास जो भाई साहब अरुण हैं, आपके पास जो भाई साहब अरुण हैं वो लेफ्ट साइड से थे और शिखर जो था 9 से था, और इन दोनों के बीच में अगर एक बंदा है, तो अगर आपके पास ये लेफ्ट साइड से है और ये राइट साइड से है, तो अरुण को राइट साइड से निकालना है। और हमें क्या बेनिफिट था कि अरुण और शिखर के बीच में एक बंदा था, तो अगर शिखर 9 था तो उससे पिछली वैल्यू कन्फर्म 8वीं वैल्यू पे थी और उससे पिछली 7वीं वैल्यू पे थी, तो दोनों को ऐड करके -1 करके 14 आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन आपका फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले में है साइलोजिज्म से, सम रेड आर क्रॉस, सम रेड आर क्रॉस, all crows are yellow and all yellow are rabbit,
एंड ऑल क्रोज आर रैबिट, ऑल क्रोज जो है रैबिट के अंदर है, सही है। सम येलो आर रेड, अगर सम येलो की बात करूं रेड बिल्कुल सही है। सम रेड आर रैबिट, हाँ ये तो बिल्कुल सही है। सम रैबिट आर क्राउज, क्राउज, ठीक है, यहाँ पे क्राउज आएगा, ठीक है। तो सम रैबिट आर क्राउज, ठीक है, ये भी सही है। तो सारे के सारे सही ही हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑल फॉलोज, यहाँ पे सारे के सारे सही हैं, ऑल फॉलोज आएगा। डन है बेटा, होपफुली बात यहाँ पे क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है। दिल्ली इज रिलेटेड टू इंडिया। तो दिल्ली क्या है, इंडिया की कैपिटल है। इन द सेम वे लंदन जो है वो किसकी कैपिटल है, इंग्लैंड की। आंसर इज बी ऑप्शन। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ करना नहीं था। एनोलॉजी का क्वेश्चन वैसे ये था। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, इन अ गर्ल लीव्स हर होम, तो अगर अपने घर से निकली है तो प्लस बना लो आप लोग, कोई दिक्कत तो है नहीं। यहाँ से आप लोग यहाँ से चले हो, ठीक है। और आपके पास क्या है, शी फर्स्ट वॉक 30 मीटर इन नॉर्थ वेस्ट। तो सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट की तरफ 30 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ पे 30 मीटर ले लो। देन आगे आपके पास क्या है, देन 30 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब यहाँ से साउथ वेस्ट में इस तरफ चले जाओ। देन आगे क्या है, नेक्स्ट शी वॉक 30 मीटर इन साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट यहां से अगर लोगे तो इस तरफ आ जाओगे बेटा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करता हूं, फाइनली शी टर्न टूवर्ड हर हाउस। अब वो अपने घर की तरफ यहां से अगर वो चली गई, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज शी मूविंग। अब वो अपने घर की तरफ जो जा रही है वो कौन से डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो इस तरफ अगर आप लोग देखेंगे तो कौन सी डायरेक्शन आएगी, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट या फिर साउथ वेस्ट। अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट आपका यहाँ पे क्या आएगा, आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पॉइंटिंग टू अ वुमेन, वुमेन की तरफ इशारा करते हुए, इन अ फोटोग्राफ मैन सेज। स्पीकर मिल गया, आदमी बोलता है, मैन सेज क्या बोलता है, दिस वुमेन। दिस वुमेन का मतलब क्या है, इसकी बात यहाँ पे हो रही है। ये जो वुमेन है इज द वाइफ ऑफ द फादर ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर। तो लो जी, सबसे पहले आपके पास मैन मिल गया था, मैन पकड़ लो, मैन पकड़ लिया। मैन के बाद उसने क्या कहा, माई वाइफ्स ब्रदर, तो मतलब मेरी वाइफ, माई वाइफ ब्रदर, ठीक है, माई वाइफ्स ब्रदर। देन आगे क्या, दिस वुमेन इज द वाइफ ऑफ द फादर। अब इसके फादर की वाइफ, ठीक है। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड इन द पर्सन। अगर मैं बात करता हूं आपके पास यहाँ पे, हाउ इज द वुमेन। अब ये जो वुमेन आई है ये इस मैन की क्या लगती है, इस मैन की क्या लगती है, आपके पास मदर इन लॉ। इस मैन की क्या लगती है, मदर इन लॉ आपके पास यहाँ पे लगती है। तो होपफुली आप सभी को सबसे पहले इतनी बात यहाँ पे अच्छे से क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो अगर मैं बात यहाँ पे करता हूँ, मदर इन लॉ इसका जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। डन, ठीक है। चलिए नेक्सट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ओड डेज आर देयर इन 527 डेज। अगर मैं बात करता हूं तो 527 ओड डेज निकालने के लिए डिवाइड बाय 7। अगर 7 से करते हैं तो 7 8 जार 56, ठीक है। 7 8 जार 7 7 जार 49, ठीक है। 49 तो 12 में से गए 9 तो बचे 3, 35। 7 इंटू 5 35। ऑड डे कितने बच गए, 2। बस यही आपको निकालना था, बी ऑप्शन, यही आपको निकालना था, बी ऑप्शन। बात खत्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है, सिलेक्ट द वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, हैट, कैप, व्हील एंड टर्बन। इसका आंसर बनेगा व्हील। अगर मैं बात करता हूँ, हैट जो है सर को ढकती है, कैप जो है सर को ढकती है, टर्बन जो है सर को ढकता है, व्हील जो है मुंह को ढकता है। तो ये क्या होता है, सबसे डिफरेंट यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या है आपके पास, पॉइंटिंग टू अ गर्ल, करमनजीत सेड। अब आपके पास यहाँ पे स्पीकर मिल चुका है करमनजीत। अब आपके पास यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्पीकर की, तो स्पीकर यहाँ पे मिल चुका है करमनजीत।
करमनजीत सेड, करमनजीत ने क्या कहा? दिस गर्ल इज द डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर। करमनजीत बोलता है माई फादर, ओनली चाइल्ड खुद कौन हुआ? करमनजीत, ठीक है। दिस गर्ल इज द डॉटर, इसकी क्या है? लड़की है। दिस गर्ल, ये जो लड़की आई है, इज द डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर। तो करमनजीत ने कहा मेरे फादर का ओनली बच्चा, मेरे फादर का ओनली बच्चा खुद कौन हुआ? करमनजीत, ठीक है। दिस गर्ल इज द डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर, तो मेरे फादर का ओनली बच्चा खुद कौन हुआ? मैं खुद हुआ, और उसकी डॉटर है ये लड़की। बट इज द रिलेशन ऑफ करमनजीत वाइफ, अब करमनजीत की जो वाइफ है तो ऑब्वियस करमनजीत मेल होगा, करमनजीत वाइफ टू द दैट गर्ल। अब करमनजीत की वाइफ जो है इसकी क्या लगेगी? तो इसकी क्या लगेगी? मदर लगेगी। डन। तो होपफुली यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के सेशन में हम करने वाले हैं आपके वीकली मॉक टेस्ट का क्वांट के पार्ट का सॉल्यूशन, और आपका मॉक टेस्ट नंबर है 68। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 495 एंड देयर एचसीएफ इज 5। अब देखो, अगर दो नंबर का आपको एचसीएफ दे रखा है तो आप कह सकते हैं फर्स्ट नंबर है वो 5x होगा, सेकंड नंबर क्या होगा? 5y, ठीक है। एंड द सम ऑफ नंबर इज 100। एक रिलेशन है आपका, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स किसके इक्वल होगा? एचसीएफ इनटू एल। अब यहां से सॉल्व करेंगे, 5 से 5 कैंसिल, और 5 इसको डिवाइड करेगा 99, तो x इंटू वाई आपका क्या होगा? 90। यहाँ x और y जो होते हैं आपके वो क्या होते हैं? कोप्राइम नंबर, ठीक है। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 99 होगी, ये 9 है तो ये 11। अब एक चीज देखो, अब इन दोनों में से कौन सा पेयर ऐसा है नहीं होगा? वो ये पेयर नहीं होगा, क्योंकि आप x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू अगर 95 रखोगे, दोनों का सम 100 नहीं बनेगा, तो x की वैल्यू क्या होगी आपकी? 9, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11। यहाँ पुट करो, फर्स्ट नंबर क्या होगा? 45, सेकंड नंबर क्या होगा? 50। तो दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा गया था, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B can do a piece of work in 18 days. A और B इस वर्क को 18 करते हैं, B and C in 24, और C और A इस वर्क को 36। एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या होगा? 72 होगा। एलसीएम क्या होगा? 72। A प्लस B की एफिशिएंसी क्या हो गई? 4, B प्लस C की एफिशिएंसी 3, और A प्लस C की एफिशिएंसी, तो ये 9 एफिशिएंसी है, और इस 9 की एफिशिएंसी के लिए सभी ने डबल वर्क किया। तो यहाँ से अगर आप A प्लस B प्लस C की एफिशिएंसी कैलकुलेट करोगे तो 9/2 हो जाएगा। उसने पूछा था इन व्हाट टाइम दे डू इट वर्किंग टुगेदर, तो 72 डिवाइड बाय 9 और 2 आ जाएगा, तो 8 पे, तो 8 इंटू 2 16 डेज में ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन 280 मीटर लॉन्ग इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म 220 मीटर। 280 प्लस 220, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 500। 60 की स्पीड से जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 5/80, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 6 इसको 3 पे, 5 इसको 10 पे, तो इंटू टाइम, तो 10 इंटू 3 30 सेकेंड में उसको क्रॉस कर ले। टाइम कितना? आंसर क्या होगा? 30। बाय सेलिंग ए वॉच फॉर 1140, a man lost 5%. In order to gain 5%, the watch must be sold. 1140 रुपए में सेल की गई तो उसको 5% का लॉस हुआ है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू कितनी होगी? 95 होगी, और अब वो चाहता है किस प्राइस पे सेल करे? 105 पे, 105 पे, 105 पे, ठीक है। अब देखो सॉल्व करेंगे, 19 से मैं डिवाइड करूं तो 5 पे करेगा, तो करें तो 60 पे करेगा, 5 से डिवाइड करें तो इसको 21, और 21 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 1260 रुपए। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए शॉपकीपर मिक्स 2 वेराइटीज ऑफ टी, वन कॉस्टिंग 35 रुपीज पर केजी एंड अनदर एट 45 रुपीज पर केजी इन 3:2। 35 इंटू 3 ये कितना हो जाएगा? 105,
और ये 45 इंटू हो जाएगा 90, मतलब 195 रुपए की उसने टोटल कितना परचेज किया 5 के, तो डिवाइड करो पहले 3 पे फिर 9, तो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 39। सेलिंग प्राइस कितना है आपका 41.60, तो आपको 2.60 का प्रॉफिट हुआ है। मैं पॉइंट रिमूव कर दूंगा तो डिवाइड बाय 100 टू 39, और ये क्या हो जाएगा आपका इंटू 100 हो। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो करेंगे 100 से 100 कैंसिल, 13 से डिवाइड करो 20, तो 20/3 का प्रॉफिट हुआ है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A tap can fill a tank in 6 hours. After half the hours the tank is filled, 3 more similar taps are open. What is the total time taken to fill the tank? देखो अब वो कह रहा है कि 6 घंटे में अगर उसने पूरा फिल कर दिया है तो आधे घंटे के बाद आफ्टर हाफ द फिल, मतलब हम कह सकते हैं कि 3 घंटे में टैंक को पूरा भर दिया गया होगा, सॉरी 3 घंटे में आधा भरा गया होगा टैंक। ठीक है, अब जो उसकी एफिशिएंसी है, अगर वो अकेला काम करेगा तो मतलब कितने अगले 3 घंटे में, अगले 3 घंटे में मतलब टोटल अगर मैं करूं 160 इंटू 60 कर दो 180। अब इसको वो 4 की एफिशिएंसी से मतलब 4 पाइप करेंगे तो सिर्फ 45 मिनट में भर देंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा 3 hours 45 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। Rakesh credit 15% of his salary in the fixed deposit account and spends 30% of the remaining on groceries. If the cash in hand is 2380, अगर उसके पास x रुपए, 15% इन्वेस्ट कर दिया, बचा कितना 85%, फिर जो 30% और खर्च किया तो बचा कितना 70%, और ये किसके इक्वल था 2380 के इक्वल, 2380 रुपए के। देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 इंटू 3 21, फिर 4 पे 17 से डिवाइड करेंगे 5, 17 से डिवाइड करेंगे तो 20, 5 इसको 4 पे कर, तो 4000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इमेंस बेसिक पे फॉर 40 आवर्स वीक इज 20 रुपीज, वो 20 रुपए कमाता है। ठीक है, ओवर टाइम इज पेड फॉर 25% अबव द बेसिक पे, मतलब देखो 20 रुपए कमाता है 40 घंटे में काम करके, मतलब उसकी सैलरी कितनी, हम कह सकते हैं पर आवर कितनी होगी 0.5 होगी। ठीक है, अबव द बेसिक पे इन ए सर्टेन वीक ही वर्क ओवर टाइम एंड हिज टोटल वेजेस वाज 25, और किसी एक वीक में उसने 25 रुपए कमाए हैं, तो हम कह सकते हैं कि उसने ओवर टाइम के लिए कितने रुपए कमाए हैं 5 रुपए कमाए। ठीक है, और ये कितना मिलेगा, ओवर टाइम इज पेड फॉर 25%, मतलब हाफ प्लस हाफ का 25%, 1/8। ठीक है, 1/4, तो इतना उसने कमाया होगा 1/8। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 4 + 1, मतलब उसका जो वेजेस बनता है वो 5/8 बनता है। तो 5 रुपए कमाने के लिए वो 5/8 आवर्स एक्स्ट्रा, 8 घंटे एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका आंसर हो गया, क्योंकि 40 घंटे पहले थे, 8 घंटा उसने एक्स्ट्रा काम किया। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर पार्क इज 25, द टाइम टेकन टू कंप्लीट ए राउंड द फील्ड, देखो एरिया कितना है 25, तो उस एक साइड कितनी होगी 5 होगी, तो उसका टोटल एरिया कितना हो जाएगा, जो पेरीमीटर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा इंटू 4 20। तो ये डिस्टेंस उसने 3 की स्पीड से मतलब 20/3, तो 6 2/3, तो 6 घंटे और 40 मिनट, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 cubes each with 8 centimeter edge are joined end to end the surface area of the resulting cuboid। देखो अब उसने क्या बोला कि 8 सेंटीमीटर 2 क्यूब रखे हैं। ठीक है, अब जिनकी एक साइड कितनी है 8 है, तो जो लेंथ है वो तो आपकी कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, जो लेंथ है वो आपकी कितनी 8 होगी, जो विड्थ है वो तो आपकी सेम रहेगी, सॉरी 8 + 8 कितनी हो जाएगी 16, विड्थ आपकी 80 रहेगी और हाइट भी क्या रहेगी आपकी 80 रहेगी, क्योंकि दोनों को मिलाकर रखा गया था। अब ये क्या बन गया क्यूबॉइड बन गया, और क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है आपका सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, जो L × B। ठीक है, सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो 16 × 8 का भी ट्वाइस होगा, प्लस
ट्वाइस ऑफ 16 इंटू 8 दोबारा से होगा, प्लस ट्वाइस ऑफ 8 इंटू, ठीक है। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, तो वैसे अगर कर सकते हो, टेबल याद रख सकते हो 128, तो ये कितना हो जाएगा 256 प्लस 256 प्लस 128, ठीक है। 12 और 8 20, लास्ट में कैरी 2 हो जाएगा, 5 प्लस 5 10 प्लस 2 12 प्लस 14, फिर कैरी 1 हो जाएगा, 5 6 640, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बैग कंटेन्स 25 पैसा, 10 पैसा एंड 5 पैसा कोइन, द कोइंस आर इन द रेशियो 1 to 3। 25 पैसे के एक सिक्का है तो मतलब 25 पैसे हो गए, 10 पैसे के 2 सिक्के हैं तो पैसे कितने हो गए, 20 पैसे हो गए, और 5 पैसे के 3 सिक्के हैं तो कितने हो गए, 15 हो गए। इनको अगर ऐड करें तो टोटल कितना बन गया हमारा, 45 प्लस 15 60, और 60 किसके इक्वल हो गया, 3000 रुपीज, और 3000 पैसा के 30 इंटू 100 को डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, और ये इसको पूरा पूरा 5 पे डिवाइड करेगा, तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 50 आ गई, ठीक है। ये 50 आ गई तो ये हम कह सकते हैं कि फिर ये कितने थे, 750 पैसे, 750, और इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 250। पूछा था द टोटल वैल्यू इज 300 रुपीज, द नंबर ऑफ 5 पैसा कोइंस। तो हमारे पास ये 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 50, तो 25 इंटू 50, ये हमारे पास कितने हैं, 1250 पैसे हैं। 20 इंटू 50, ये हमारे पास कितने हैं, 1000 हैं, और ये हमारे पास 15 इंटू 750, ठीक है। तो आंसर 250 आना चाहिए, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 250 आना चाहिए, ऑप्शन सी आ जाएगा, मे बी यहाँ टाइपिंग एरर है, ठीक है। चलिए, द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 30 ईयर्स, 30 लोगों की 30 है तो 30 गुना 30 करेंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। व्हेन द एज ऑफ द क्लास टीचर इंक्लूड द एवरेज एज ऑफ द होल क्लास इंक्रीज बाय 1। अब देखो 31 इंटू 31, 31 का स्क्वायर कितना हो गया, 960, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 60 की एज होगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन था ये। आई होप ये क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर होंगे। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। Hello everybody, welcome to the English section by Gyanam. I am Piyush Sardana, your budding English language teacher. Let us check what we have in the store. आपको correct substitute करना है, इसकी जगह पर क्या आएगा, तो he grabbed the man from नहीं by overcoat हो जाएगा। Next, she could not help but laugh, नहीं, she could not help but laugh यानी no improvement. Next, brinjals are dead cheap these days. डेड चीप का मतलब होता है सुपर चीप, डेडली चीप, डर्ट चीप, डस्ट चीप या नो इम्प्रूवमेंट। पहली बात तो जब मैंने किसी ऐसी चीज की बात करनी है जहां पर आपके पास डायरेक्ट शो हो जाए कि वो किसकी बात कर रहा है। अब देखो यहां पर किसकी बात हो रही है, ब्रिंजल्स आर डेड चीप, डेड मतलब मरे हुए चीप नहीं, डर्ट मिट्टी के भाव मिलते हैं। द चाइल्ड जंप विद डिलाइट ऑन सीइंग द जोकर एट द सर्कस वुड बी क्लाउन। नेक्स्ट, ये इडियम के बारे में बताना है। इट विल बी वाइज ऑन योर पार्ट टू लेट द बायगॉन्स बी बायगॉन्स। बायगॉन्स बी बायगॉन्स का मतलब होता है जो पुरानी बातें हैं उसको मिट्टी पाओ, उसको भूल जाओ। मतलब आंसर क्या होगा, पास्ट को दफा करो और रिकलेक्ट, रेजिस्ट, इग्नोर द पास्ट। नेक्स्ट वाला हो जाएगा, द बॉय हैड अ हेयर ब्रेड्थ एस्केप फ्रॉम अ स्ट्रीट एक्सीडेंट। हेयर ब्रेड्थ का मतलब क्या हुआ, जो बिल्कुल बालों के बराबर की मोटाई का एस्केप है, यानी नैरो एस्केप। नेक्स्ट है, ही मेड सेवरल अटेम्प्ट्स टू प्लेकेट हिज ओपोनेंट्स। और आपको ध्यान रखिएगा यहां पर ऑपोजिट बताना है, तो प्लेकेट का मतलब हो गया ऑपोजिट में इन्फ्यूरिएट। गोरिल्लाज इनफिल्ट्रेटेड इनटू द रीजन ड्यूरिंग द सिवियर विंटर ऑफ 1997। इसका भी ऑपोजिट बताना है तो आंसर हो जाएगा एक्सपेल्ड, वो अंदर आ गए, ये बाहर चले गए। द हैमबर्गर टेस्ट्स ऑफुल, बिकॉज हैमबर्गर की बात हो रही है। When we got home from the airport, we were all very sleepy. हम लोग sleepy थे। I dashed there, go and answer the doorbell. I cook नहीं, I am cooking हो जाएगा, go and answer the doorbell.
synonyms of the given word. Shovel, spade would be the correct answer. Shovel की तरह. Yeah, there we go with it. Thank you.